फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सूर्य की। क्योंकि कल सूर्य अपने जिस राशि पे आज है, मकर राशि पे, जहाँ की 6 ग्रहों की युति बनी हुई है, वहाँ से वो आगे जाके और कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सूर्य है क्या, मतलब सूर्य किस लिए। तो मेनली द सन इज responsible for 3 things that is very important, very important. First is arogyata. Arogyata means health. In case if one has to see the health of any person, then we have to see in 2 ways. One is the health, the planet responsible for the health of that particular individual or in his horoscope. But generally, mainly, the sun is seen with that also, because sun is the planet which gives you arogyata, which gives you healthiness, which keeps you away from the disease or ailments. So this is the most important, as we have been hearing or I have been told, पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे इम्पोर्टेंट सूर्य के लिए ये है। दूसरा, सूर्य जो कमांडिंग लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, ये सब के लिए भी सूर्य है। आत्मा का कारक भी सूर्य है, बट मेन थिंग whosoever, see, that's a very big chapter. Someday I may refer that the sun is very important for all the bureaucrats, and at times sun is in depletion or debility position also. Even then, because of that sun, the bureaucrat has come to the level of chief secretary or secretary government of India. So basically the second point which is referred in reference to Surya or the sun is administrative skill. All big commanders, whether they are general, military general, definitely they require assistance from Mars also, but basically they all possess very good exalted or very good sun position, either or by strength wise in exaltation. The third thing, which is if I want to describe the accountability or the responsibility of sun for what is there, that is not possible. But the third most important, I am telling you 1, 2, 3, the 3 important aspects or 3 important role of sun in our life. That is in the married life. This has also become very important nowadays. You see, there are so many separations. There are so many problems in the married life. There are so many problems in getting the child also. So the sun here also is very responsible for this all. In case if the sun is aspecting or placed in the houses which are governing our married life, definitely there will be some problem. There will be some difficulties. The person has to see maybe a forced separation, or maybe separation, or maybe the position like separation. That is, these are the 3 basic, very important role of sun in our life. So now let's see what is there. See, at present sun is in the Capricorn and will be transiting to Aquarius tomorrow. So because of this sun on Aquarius or in Aquarius zodiac, what are the effects will be there which will be faced by the persons of different zodiac sign or rashis. तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, एरीज की। देखिए, इनके लिए सूर्य इतनी अच्छी पोजीशन में आ रहा है 11th हाउस। तो फॉर 1 month they are very safe in financial position, means they will be getting profits whatever they do it, and
they will be getting all those things which I referred in the initial stage. Say if there is any case or any administrative problem which they are passing through, that will be resolved. But basically this for Mesh Rashi, that will be very, very beneficial in getting the results of I'll say कि मेष राशि वालों को बहुत लाभ होगा, प्रॉफिट्स होगा, and they will be getting good results in these administrative area also. और इनकी जो एनर्जी लेवल है, their system of command and all that, courageousness, everything will increase with this. Now the second thing is Taurus, वृषभ राशि. वृषभ राशि के लिए ये मैं कहूँगा मिक्स रिजल्ट देगा, फिर भी विल बी इन ए गुड पोजीशन, और इनको भी जॉब वाइज कहीं कहीं कुछ दे सकता है, बट हेल्थ वाइज देयर मे बी स्लाइटली इश्यूज फॉर दिस Taurus persons also. But basically it's a, I'll say 50-50, means 50% will be helping and otherwise will be like that. अब आता है अपना जेमिनी और द मिथुन राशि की बात करें. आज की डेट में मिथुन राशि के 6 ग्रह चल रहे हैं 8th हाउस में. तो 8th हाउस का नाम क्या है ये मैं यहाँ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये बोलने से ठीक नहीं लगता, बट दिस रिलेट्स टू आवर लॉन्गेविटी and very particular, specifically, we will not know when the person will die by seeing any of the horoscope, by going to anywhere. Nobody can predict about the death of a person. But by seeing this 8th house position and the planets placed there or aspecting there or connected with that, we can certainly certify what will be the probable cause for the death of that person. सो मिथुन राशि के तो अभी 8th हाउस में है, कल वो भाग्य भवन में चला जाएगा, और भाग्य भवन में जाने से एक, अगर ये बच्चे हैं तो इनके फादर को बहुत अच्छी हेल्प होगी. दूसरा, इनकी जितने भी मतलब जो भी भाग्य में बढ़ने वाले तरीके हैं उनमें सब में अच्छा रहेगा, और बेसिकली ठीक रहेगा. एकदम से खराब जगह से अच्छा पहुंचेगा तो they will see a good remarkable change for this complete month. अब आता है कर्क राशि, जो मेरी खुद की भी है. कर्क राशि में ये अब 8th हाउस में पहुंचेगा कल. तो 8th हाउस में पहुंचेगा, ये एक तो प्लस पॉइंट करेगा, क्योंकि वो 2nd हाउस को देखता है, इसलिए एक तो ये करेगा कि फाइनेंशियली मीन्स money earning wise this month will be quite favorable for the all Cancerians or the Kark Rashi persons. But otherwise everywhere things will be in a rough tough way. First is the health, second anything which may be a cause for insult or administrative problem like that. And if he or she is married, they may see a difficulty in their married life also. Their partner may get sick, their partner may feel bad, there may be hot discussions like this. अब आता है सिंह राशि. सिंह राशि के लिए, लियो पर्सन्स के लिए, लियो तो यू नो दे आर, दिस इज लियो इज द राशि ऑफ सूर्य ओनली. जो लियो वाले लोग होते हैं, जो सिंह राशि के लोग होते हैं, वो अपने आप में एक स्पेशली होते हैं. तो उनके ये 7th हाउस में आएगा, हाउस ऑफ पार्टनर में आएगा, वहाँ पर वो केंद्र में भी होगा. तो उनको फर्स्ट थिंग, इन केस इफ दे आर अपियरिंग फॉर एनी एग्जाम और कंपटीशन और वेटिंग फॉर द प्रमोशन और गुड पोस्टिंग एंड ऑल दैट, that may be there और अच्छा रहेगा. दूसरा, इनके एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा होगा. और थर्ड चीज़, जो अगर वो मैरिड हैं तो उनमें थोड़ा बहुत खटास आ सकती है, थोड़ा बहुत दे मे फील
स्लाइट बर्न ऑफ दिस और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद में आता है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सूर्य की एक अच्छी पोजीशन है और कन्या राशि बुध से गवर्न होती है और सूर्य बुध तो एक बहुत अच्छा बुध आदित्य योग बनाते हैं, तो इसलिए कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा होगा ये। सारे पोर्शंस 3/4 पोर्शन सब अच्छे रहेंगे एक्सेप्ट वन थिंग, बिकॉज 6th हाउस इज हाउस ऑफ शत्रु, रोग और पीड़ा, सो दे मे फील सम हेल्थ इश्यूज, minor health issues, not very much, nothing like critical or serious or something you have to worry. No, it's a, they should take care of the, in case if the person has any chronic ailment, they should get themselves checked, medically examined or investigated or like that. अब बात करते हैं तुला राशि की। इनके जो लिब्रा जोडिएक है, लिब्रियंस हैं, उनके लिए ये 5th हाउस में आएगा। दिस इज ए हाउस ऑफ परफॉर्मेंस, आउटपुट। और एक चीज़ के लिए और भी है, जितने भी प्रणय मीन्स रोमांस या लव वाला, बट सिंस सन इज नॉट मेंट फॉर दैट, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट सर्टेनली देयर परफॉर्मेंस, देयर आउटपुट, देयर वर्किंग, देयर जॉब, देयर बिजनेस, एवरीथिंग विल गेट स्पीड अप और विल इम्प्रूव। तो वो एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर मैं फिर कहूँगा कि ये बच्चों के लिए भी है और स्टडीज़ के लिए भी है। तो अगर कोई बच्चे किसी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी सक्सेस होंगे, और इन केस इफ दे आर गोइंग फॉर एनी फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और एनी ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, दिस इज़ ए फेवरेबल पीरियड फॉर 1 month बिकॉज ऑफ द सन ट्रांजिट इन एक्वेरियस। उसके बाद में आता है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस का तो विशेष चीज़ है। स्कॉर्पियंस वैसे तो चंद्रमा इस राशि पे नीच का होता है, बट स्कॉर्पियंस आर स्कॉर्पियंस। ये अगर किसी से दबते हैं तो थोड़ा लियो और स्कॉर्पियन का थोड़ा रहता है, अदरवाइज एब्सोल्युटली दे ऑल्सो स्टैंड नंबर 1। तो इनके 4th हाउस में होगा, तो इनके कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, अच्छा हो सकता है। सर्टेनली बी पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी जॉब वाइज दे विल, इन केस इफ दे हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू और दे आर सर्चिंग फॉर द जॉब, दिस इज द फेवरेबल पीरियड। इन केस ऑलरेडी दे आर इन द जॉब, then again they may get good rating or name and fame, or something good will be there in connection in reference to their job, business. Then उसके बाद में आता है धनु राशि का। धनु राशि के लिए ये 3rd हाउस में आएंगे, which is again a good house for the sun. In case sun is placed in 3rd house in the horoscope when you were born, that man has to reach up to a very good height. Means for that I can use one dialogue, sky is the limit. So in that way his again name, fame, honor, status will improve because of this sun. And then comes Capricorn. Capricorn persons will be certainly adding something like financially they may feel slight better, and second important thing is कि their energy level will also improve, but this is a Marakistan also, so they should also care for their health. Then last में not the last but last one, that is Aquarius, जिसमें ये खुद सूर्य अब कल आ रहे हैं। तो एक्वेरियंस में या कुंभ राशि के लोगों के लिए ये सूर्य उनको एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, वो सब चीज़ें दे देगा, बट इट्स आस्पेक्टिंग द 7th हाउस, और 7th हाउस इज हाउस ऑफ पार्टनर, जहाँ की वो कुछ अच्छा नहीं करता, भला नहीं करता ये सूर्य। तो दे शुड केयर फॉर देयर रिलेशनशिप, मीन्स इन बिटवीन द हस्बैंड वाइफ, and they should care for the health of the spouse also.
मेनली ये जो माइनस फैक्टर ये है, या जो कमज़ोर एस्पेक्ट जो इस सूर्य का है वो ये है। बाकी तो सूर्य बहुत कुछ देगा इनको। उसके बाद में आती है मीन राशि, पाइसेस। जो मीन राशि के लोग हैं उनके 12th हाउस में होगा, तो एक पार्ट अच्छा है कि दे मे बी मोर इन्वॉल्व इन द इम्प्रूविंग देयर सोल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, मोक्ष की तरफ बढ़ने वाली बातें कर सकते हैं। बट अदरवाइज दे शुड ऑल्सो केयर फॉर देयर हेल्थ एंड the married life or the family life, they should care. Now, concluding part, I must tell you that different Rashi have remedies, but I will mention here the general thing. See, Surya is somewhere connected with Brahma also, and Surya is connected with Hanuman ji also. हनुमान जी के ये गुरु और ब्रह्मा से ये जुड़े हुए हैं, फादर से ब्रह्मा जुड़े हुए हैं। तो इस कारण कश्यप पिताजी, फिर उसके बाद में वो, तो इसके कारण ब्रह्म स्वरूप ने सूर्याय नमः भी हम कहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सूर्य को जल चढ़ाना। उसके अंदर आप काले तिल भी डाल सकते हैं, बट इतनी चीज़ें आपको ज़रूर डालनी है। हल्दी, लाल रंग, जैसे कुमकुम होता है नॉर्मली कुमकुम, और उसमें आप पुष्प मतलब फ्लावर भी डाल सकते हैं, जैसे कि डार्क पिंक या डीप मैजेंटा कलर के या ऐसा। बट बेसिकली वेरी सिंपल कि लाल रंग डालिए, कुमकुम डालिए, चावल डालिए। साइड में आप ये अगर कॉपर का या तांबे का बर्तन हो तो बहुत अच्छा है, उससे चढ़ाइए। साइड में अपने हाथ में गुड़ रखिए, पहले वो चढ़ाइए, उसके बाद गुड़ चढ़ाइए। और यहाँ पर आपको चॉइस है आपकी 1 2 3। एक है सीधा सूर्य के जो 12 नेम्स हैं वो आप बोल दीजिए। दूसरा है गायत्री मंत्र का 24 टाइम आप रिसाइट कीजिए। तीसरा है वेरी सिंपल, ओम ह्रीम घृणीम सूर्य आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, वेरी सिंपल, सूर्य देवताय नमः। I always tell the remedial measures which are very simple, because wherever I am connected on this front, means in this astrology, people are they even don't understand Hindi. They are bachaj, means all the children, they had gone for US for their studies in US, all, so they are only conversant with English and English only. तो उनके लिए ये है। और दूसरी चीज़ एक भी बता देता हूँ मैं आपको, दैट इन केस इफ यू डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस और अनाउंस लाइक दिस और हाउ टू रिसाइट दिस, देन यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डाउनलोड ऑल दीज थिंग्स बाय यूट्यूब, एंड वाइल यू आर डूइंग, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं उस समय वो आप यूट्यूब से सुना के उनके साथ साथ में आप भी सुन लीजिए या बोल लीजिए, और सूर्य देव को इस तरीके से ये जल चढ़ाइए। अब दूसरा पार्ट एक और है कि सूर्य देव के शिष्य हैं हनुमान जी, और हनुमान जी को वैसे तो एक पूरी स्टोरी है, बट वो अब छोड़िए, उस स्टोरी में बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। बट आपको ये बता दूं कि इसमें ये है कि हनुमान चालीसे का पाठ या हनुमान जी का ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, उसके 108 नाम, और इन हनुमान जी के जो गुरु या जिनके वो अंश हैं, हनुमान भी अंश हैं किनके, महादेव के, शिव के, तो ओम नमः शिवाय भी बोला जा सकता है। बट बेसिकली तो सूर्य देव के वो गायत्री मंत्र या सूर्य के खुद के नाम या ओम सूर्याय नमः 108 टाइम्स, एंड या फिर आपके ये हनुमान जी का हनुमान चालीसा आप बोल दीजिए। और वहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बात सही है कि ओमनी प्रेजेंट, भगवान तो हर जगह है, हमारी बॉडी में है, बाहर अंदर से एवरीवेयर एग्जिस्ट, एंड सूर्य तो भगवान है, प्लैनेट के साथ साथ में सूर्य देव भी है, भगवान का रूप भी है। तो इसलिए
पर फिर भी ये हमारे हिंदू शास्त्र की मान्यता है कि हमें ये जरूर कहना चाहिए, जैसे आपको आरोग्यता चाहिए, स्वस्थ होना है, हेल्दीनेस चाहिए, वो बोलिए। आपकी जो प्रॉब्लम है, आफ्टर यू कंप्लीट ऑल दिस यू स्पीक आउट और फिर वो आपका कंप्लीट होता है। तो ये एक जनरल रेमेडी है, वो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। उसके अलावा भी हैं जैसे कि सूर्य के जो वैदिक मंत्र तो उन्हीं लोगों के लिए होता है जो वैदिक होते हैं, जनेऊधारू, और उसमें भी जनेऊ के साथ साथ में जो एक्चुअल ब्राह्मण होते हैं या अपने कर्म से कृत्य। जो मैं एक चीज़ कह रहा था कि एक और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है कि हम पौराणिक मंत्र, क्योंकि वैदिक मंत्र का अधिकार तो एलिजिबिलिटी इज वेरी लेस, पीपल हु आर एक्चुअली दे आर फॉलोइंग दैट वैदिक सिस्टम, दे आर द ओनली एलिजिबल। बट पौराणिक मंत्र जो पुराने वाले मंत्र हैं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं, वो मंत्रों का आप किसी भी कोई एक अच्छे वैदिक ब्राह्मण से उस मंत्र का जाप और पूजा करवा लें। एक बार साल में करवाने से भी चलता है, पर यूँ देखा जाए तो कलयुग में चौथा युग है, इसलिए 4 बार इसको रिपीट होना चाहिए एवरी ईयर। और फिर उसके बाद में अगर मुझे कुछ कहना है तो ये कहना है कि सूर्य में आप, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड है ना, तो आप शनि का एक छोटा सा पोर्शन इसमें ये भी आता है कि किसी को इंसल्ट मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, डोंट बी रफ विद एनीबडी। उससे भी सूर्य थोड़ा बहुत खुश होते हैं। एंड ऑल द बेस्ट। आपको ये अच्छा लगे तो आप देखते रहिए, दूसरों को बताइए।